जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो जो होने जा रहा है वारिस पठान के अगेंस्ट, जो है वक्फ बोर्ड के बारे में। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आरंभ करते हैं दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Let me get in Waris Pathan. Waris Pathan, Jammu Kashmir elections happening. The opposition was trying to make a atmosphere as if this will never happen. Now they are happening. The Waqf bill has been brought in. The fact that one nation, one poll will take place is a statement that has come in from the topmost echelons of the government. Waris Pathan, ये जो लोग कह रहे थे कि this is a scared government, it is a government that has to depend on crutches, none of that seems to be happening, and which is why आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है ना वक्फ बिल पर। Every day you have to fight a new war. The question here is, a weak Modi is what everybody said after 4th of June. Today, the Modi Sarkar is chugging along almost as if nothing has changed. Well, Modi and BJP have totally lost their priorities, Navika, since June 4th, after the election results were declared, and when Modi could not get 400 plus and then went only on 240, and with the support of two parties, Chandrababu Naidu and Nitish. So they have totally waged a war against the Muslim community as a revenge after the 4th June election. You see, everybody is watching every day that what's happening to the Muslim community. The bulldozers have increased, mob lynchings have increased, and now he's come up with the Waqf bill. What the Waqf bill is a total Waqf amendment bill is a total violation of Constitution. It's Article 25, Article 26, 29, pure violation of that. How can somebody engage into our Waqf property? Supreme Court has time and again said once a Waqf, always a Waqf. You cannot. But now Modi wants to target the Muslims, so he wants to go all along and usurp up the property. The intentions of Modi and RSS are totally clear. They have malified intentions to usurp up the property belonging to the Muslims. This property belongs to Allah and Muslims. These properties are given as waqf by our forefathers to ensure that the Muslim community prosper, to ensure to see to it that the Muslims are given, they want sawab. The niyat to donate the property as a waqf was sawab, and you want to take away the property. India Gate वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गई? नहीं, 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया गेट उठाकर दे दिया। In 2013 the India Gate was given as a waqf property. How is India Gate waqf property? Can you please explain? But the Waqf Act 1991 is Waqf Act 1995 is already into existence. 2013 an amendment is already done. Let the Waqf board decide. Let the Waqf tribunal decide. If they cannot, there are courts to look into it. But you want to enter into the Waqf board, you want to enter the take away the rights of the Waqf tribunal, and you want to put a collector who will decide. There are Hindu endowment boards. Is there any Muslim allowed in the Hindu endowment board? Kindly say that nobody is allowed. Yes. So why you want to bring someone to the collector or as you're being challenged on facts. You're being challenged on facts. Anand Ranganathan coming in. There are courts to take care of it. You are being challenged on facts. Waris Pathan, Anand Ranganathan, please respond. बिल्कुल, देखिए वारिस पठान साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। इन्होंने कहा कि किसी हिंदू टेंपल एंडाउमेंट बोर्ड पे, हिंदू बोर्ड पे कोई मुस्लिम है। तारकेश्वर टेंपल पे फारिद हकीम है, देयर आर क्रिश्चियंस देयर। दूसरी बात है, कम्युनिस्ट ने बोर्ड हथियाए हुए हैं केरला में 5 बोर्ड्स। द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क माय एल्डर ब्रदर वारिस पठान साहब, that there are ample laws in the country that take care of property disputes. If I say tomorrow, Navika, your house is my house, I will not go to some board. I will go to court or you will go to court. Likewise, अगर मैं कल को कहूं एज ए हिंदू, वारिस पठान साहब आपका घर एक्चुअली किसी हिंदू प्रॉपर्टी है, ये मुझे मिलनी चाहिए, वारिस पठान साहब क्या करेंगे? वारिस पठान साहब कोर्ट जाएंगे, वहां पे मामला होगा। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक अदर और पैरेलल एवेन्यू होता, वक्फ बोर्ड का ऑल्टरनेट, हिंदू वक्फ बोर्ड कह लीजिए या हिंदू बोर्ड कह लीजिए, और उससे मैं कहलवाता, तो वारिस पठान साहब कहते मैं तो कोर्ट जा रहा हूं, मैं आपके बोर्ड पे क्यों जाऊं? पहले
यही प्रॉब्लम हिंदूज की है, यही प्रॉब्लम और बाकी सारे नॉन मुस्लिम्स की है कि सबसे पहले एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर दिया गया कोर्ट्स के अलग करके, जो डिसाइड करता है कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है कौन सी नहीं है. दैट इज पेटेंटली इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इट हैज टू गो. The only correction I would like to make in the 100 days of Modi government is it should not have brought in the bill that said we are going to make amendments in the Waqf board. It should have abrogated the Waqf board. Because amendment किसी भी ड्रैकोनियन एक्ट पे नहीं की जाती, ड्रैकोनियन एक्ट को हटाया जाता है. Now तहसीन has said क्या कर लिया 100 दिन में. Nobody judges anybody on 100 days. Even nowadays, I don't know how the situation is. People who are courting also don't decide within 100 days whether you're going to marry each other or not. तहसीन का पता नहीं क्या situation थी. तो one looks at last year, last 10 years. उसमें मैं आपको सिर्फ लास्ट ईयर का बताना चाहता हूं क्या सिचुएशन है, सिर्फ डेटा और प्रूफ पे. एंड आई चैलेंज तहसीन टू चैलेंज मी. मंथली जीएसटी कलेक्शंस आर द हाईएस्ट एवर एट 2.1 lakh crores. Vehicle sales are the highest ever at 4.2 million units. No. Exports are the highest ever at $780 billion. Income tax returns are the highest ever at 68 million. Foreign exchange reserves are the highest ever at $675 billion. Manufacturing PMI is the highest ever at 59.1. Number of jobs created is the highest ever at 47 million. Startups are the highest ever at 118,000. Central government debt to GDP ratio is 5-year low of 56%. Inflation is at a 5-year low of 3.5%. Inequality is at 5-year low of 0.4. Sensex is the highest ever at 83,000. अब ये पिछले 100 डेज की रिपोर्ट नहीं है, पिछले 300 डेज की रिपोर्ट है. मैं तहसीन से चैलेंज करता हूं कि आप मान लो मोदी से शादी कर लो. Allow me. Well, my very good friend Anand Ranganathan made a long lecture as usual. He is in a habit of giving long lectures. But he forgot, in praising Modi, he forgot that what Modi failed in, Sabka Saath, Sabka Vikas, biggest jumla. 15 lakh will be deposited in your account. और एक जुमला, 2 crore jobs will be provided, उससे बड़ा जुमला. Demonetization से black money खत्म हो जाएगा, वो जुमला. तो ये सारे जुमला के बारे में आप कब बोलेंगे आनंद रंगनाथन? सारे जुमले. उसके बाद में आपने 400 पार का तो की बात करिए. जब मोदी ने कहा है वो झुकेंगे नहीं, तो झुक रहे हैं क्या? आपको झुकते हुए नजर आ रहे हैं क्या? 10 सेकंड. अरे आनंद रंगनाथन is capable of replying to my queries. नाविका प्लीज, आप आनंद रंगनाथन कैपेबल है, साइंटिस्ट है, वो मेरी रिप्लाई दे देगा बात का. अरे आनंद भाई जरा मेरी बात का जवाब. आपने मोदी की तारीफ कर दी, जरा इन बात की भी मोदी के आदमी आए दिन आकर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करते, अरेस्ट नहीं होता. उनके बीजेपी के नेता हर दिन आके मुसलमानों को मस्जिद में घुस के धमकी देते हैं, मार डालेंगे. मोदी खामोश रहते हैं. तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास क्या हुआ? ये जुमला नहीं तो क्या हुआ मेरे दोस्त आनंद रंगनाथन? अब आप बोलिए. आनंद, कमिंग टू शहजाद फर्स्ट. Let me respond to this. शहजाद 10 सेकंड प्लीज. आई बेग यू. वरना वो वक्त चला जाएगा. 10 सेकंड. नाविका, इफ यू प्लीज अलाउ. Go ahead. Are you okay? He is conceding. You Please. don't need to beg to me, Baba. Please don't do that. नहीं यार, यू आर माय ब्रदर. You are my brother. ओके, वारिस पठान साहब ने कहा कि मोदी का प्रॉमिस. नाविका, देयर इज एन एको अगेन, प्लीज इफ यू कुड करेक्ट इट. वारिस पठान साहब ने कहा कि देखो मोदी ने सब जुमला किया. 15 लाख रुपए उन्होंने कहा था डिपॉजिट करेंगे, हर अकाउंट में नहीं किए. मैं अपना नाम आनंद रंगनाथन अली शब्बीर सुलेमान कर लूंगा आज ही, अगर ये फेक न्यूज नहीं हुई. इट्स एन ओपन चैलेंज टू वारिस पठान साहब. इतना झूठ मत बोलिए, 15 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं. आई चैलेंज वारिस पठान साहब टू प्रूव. एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड. चलो मैं आपको वीडियो बता दूंगा जहां पे बोला गया था कि 15 लाख रुपया एक के अकाउंट में जमा हो जाएगा. 15 लाख जमा करने की बात की. आई विल इनवाइट यू बोथ फॉर अ डिबेट. आई विल इनवाइट यू बोथ फॉर अ डिबेट एंड नामकरण वहीं पर होगा. वारिस पठान का नाम आनंद रंगनाथन हो जाएगा और आनंद रंगनाथन सुलेमान जी हो जाएंगे. लेकिन शहजाद पूनावाला. ऑल राइट, ओके. मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं. दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू को पता चल सके. सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि हमारा जो परिवार हो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके. और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि चैनल का जो वीडियो है वो आने के टाइम आपको सबसे पहले मिल सके और आप देख सकें इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को हमारे चैनल का. तो फिर इस वीडियो में आनंद रंगनाथन, वारिस पठान, तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला, नाविका कुमार, ये सब बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर. और ओवरऑल जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो बहुत सारे ये लिबरल
इस्लामिस्ट लोग जो बोल रहे थे ना कि इट्स गोइंग टू बी अ वीक गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी बात करने आ रहे हैं। तो फिर ये देखिए, अभी जो ये डिबेट में पहले स्टार्टिंग में नाविका कुमार ने वारिस पठान को क्वेश्चन पूछा था कि क्यों, आपको कैसा लगा कि ये जो गवर्नमेंट है जो जिसको सब वीक बोलने जा रहे थे, ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, ये दो एक हैंडल्स में इनका सरकार चल रहा है, एक हैंडल वो स्टीयरिंग नायडू के पास है, एक स्टीयरिंग नीतीश के पास है, टीडीपी और जेडीयू का, पर इधर कोई वो ऐसा वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है, ये बोल रही हूँ। और मिस्टर वारिस पठान तो आपको पता ही है, उनको वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर वो बोलने लगे अपना जो एक कम्युनिटी है उनका, वो उनके बारे में बात करते हैं, उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, दूसरे जो कम्युनिटीज़ है उनके बारे में नहीं बोलते हैं। वो मीम के जगह ऊपर एक जय भीम भी लगा देते हैं, पर वो जय भीम को मानते नहीं है। जय भीम हर टाइम जय मीम के नीचे ही होगा, जब तक वो सर्वियंट होंगे, उनके नीचे रहेंगे, उनके दबाव में रहेंगे, मीम के दबाव में भीम रहेंगे, तभी जाके जय भीम और जय भीम होगा। और जय भीम और जय मीम कभी सूट ही नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जय मीम वाले लोगों का, वो जय भीम के अगेंस्ट ही होता है। उनको ही कन्वर्ट कराना चाहते हैं लोग, उनको ही बोलते हैं कि तुम हिंदुज़म से हटो, तुम बुद्धिज़्म से हटो, तुम हमारे धर्म में आओ। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा उधर ही आता है, और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज़ है उधर, बहुत सारा डिविजन्स हैं उन दोनों पार्टीज़ का। और ये एक बात है, और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कहीं से भी वीक नहीं लग रहा है। पहले सत्र में इन लोगों ने वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेके आए, और अभी आगे जाके जो न्यूज़ रिपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें तो यही बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू ब्रिंग वन नेशन वन इलेक्शन लॉ, और भी बहुत सारे लॉज आएंगे। ये जो सेकुलर सिविल कोड है इसको भी पारित करेंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया है अब हम जो मीम है उसका वोट हमको कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो उनका जो धर्म है उसमें लगा के रखा है कि जो हमारे धर्म के अगेंस्ट है परसीव्ड। ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट तो है भी नहीं, वो 30% इनको ही सब उनके स्कीम में एक अलॉटेड सीट दे के रखा है इन लोगों ने। तो फिर ऐसे कोई गलतफहमी है तो फिर इन लोगों को ही है, क्योंकि लोगों को लगता है जो बयान देते हैं बीजेपी के लीडर्स, वो द ट्रिकल डाउन भी करता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है वो भी बीजेपी का गवर्नमेंट का पूरा जो ये बयान है, जो ये लोगों का बयान है, वो बयान मानते हैं। तो फिर ये एक बात है, मोदी गवर्नमेंट वीक नहीं है, अभी तक तो वीक नहीं दिखाई दे रहा है, वो स्टार्टिंग से ही वीक नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है सब उन्होंने ही सिलेक्ट किया था अपने मन अनुसार। और नायडू को पैसा चाहिए, नीतीश को भी पैसा चाहिए, दोनों को पैसा चाहिए अपने स्टेट का बचा के रखने के लिए। और नायडू के हाथ में एक पार्टी है जनसेना, और जनसेना तो आप लोगों को पता ही होगा, जनसेना एक हिंदू पार्टी है, और हिंदू हित के बारे में बात करते हैं उधर उनके लीडर जो हैं पवन कल्याण। तो फिर वो जब तक टीडीपी के साथ हैं तो फिर उनका जो एक बढ़त है, ये YSPR जो जगन मोहन रेड्डी का जो पार्टी है उसके ऊपर बढ़े रहेगा, क्योंकि ये दो मेन बड़े कास्ट हैं उधर के, उन दोनों कास्ट लीडर्स बन के पावर मिलते रहेगा। और जेडीयू के पास तो एक बहुत जो कास्ट एरिथमेटिकली बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस है, जो चिराग पासवान का पार्टी बीजेपी और जेडीयू, इनका जो कास्ट अलायंस है बहुत पावरफुल है। तो फिर ये भी उनको बाहर निकलने नहीं देगा। ऐसा ही नहीं है कि इन दोनों के पास ही पूरे के पूरे लेवरेजेस हैं, बीजेपी के पास भी बहुत सारे लेवरेजेस हैं इनके अगेंस्ट। तो फिर वो तो जाने दीजिए। और इस वीडियो में वक्फ बोर्ड के बारे में बात किया है। आनंद रंगनाथन को तो लगता है कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह एबॉलिश कर देना चाहिए, मेरे को भी लगता है एबॉलिश कर देना चाहिए, पर इतना भी पावरफुल नहीं है अभी तक। ये गवर्नमेंट के पास अकेले बीजेपी के पास इतना सीट होता तो फिर कर पाते ये, पर अभी इनको झटका मिला है, और झटका भी अच्छी तरह मिला है, क्योंकि अगर नहीं होता, इतना सीट भी कम होता ना, ज़्यादा सीट होता, तो फिर वो अपना तुष्टिकरण करते रहे होते, संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण, ये सब करते रहते होते। वो अभी वक्फ बोर्ड को टच भी नहीं करते अगर इनके पास 300 से ऊपर 400 सीट ऐसे कुछ आ गया होता। तो फिर ये भी एक बोन है हिंदुओं के लिए। हिंदुओं के लिए अभी वो काम करेंगे ताकि हिंदुओं को फिर से एकजुट करके
ऐसे जो कास्टिस्ट पार्टीज़ हैं उनको हरा सकें। और वक्फ बोर्ड का तो आपको पता ही है, वो एक नासूर है, नासूर है, देश के लिए एक कलंक है वो वक्फ बोर्ड। क्योंकि उधर पहले तो बस मुसलमानों के लिए वो एक्ट था, पर हमारे जो कांग्रेस वाले जो लीडर्स हैं उनको हिंदुओं का जो भी सुख चैन है वो उनको रास नहीं आता है ना, उनको मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है उनको। अगर हिंदू थोड़ा सा खुश हो जाए तो फिर उनको लगता है कि ये क्यों खुश है, तू खुश मत हो, तेरे को खुश होने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, तेरा वोट तो हमको एक परस्त मिलता नहीं है, हमको तेरे कास्ट एक दो कास्ट का वोट मिल जाए, मेन बिग कास्ट का, और हमको एक परस्त वोट जो मुसलमान हैं उनका मिल जाए, तो फिर हम अपना सरकार बना लेंगे। इस टाइम भी यही हुआ था कि बीजेपी के पास पूरा जो एक परस्त हिंदू वोट था वो नहीं गया था और कांग्रेस के पास चले गया था। तो फिर इसीलिए बीजेपी वक्फ बोर्ड लेके आके अमेंडमेंट लेके आके जो इनका पावर है ना उसको रिटल डाउन कर रहा है, क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं है जितना ही है। ये किसी का भी लैंड बोल दें हमारा है और वो हो जाएगा, होने के बाद उस बंदे को कोई नोटिस भी नहीं जाएगा, नोटिस भी जाएगा तो एक उर्दू पेपर में नोटिस लगा के दे देंगे, बोल देंगे कि हमने नोटिस इस उर्दू पेपर में दिया था जिसका सर्कुलेशन 200-300 लोग देख पढ़ते हैं बस। तो फिर ऐसे ऐसे ऑब्स्क्योर चीज़ों में ये करते हैं काम, और इनको तो लगता है कि पूरा देश ही हमारा जो है वो एक वक्फ लैंड है। हमारा देश वक्फ लैंड नहीं है दोस्तों, कभी होने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमारा देश अभी तक हिंदू मेजॉरिटी है, इसलिए इधर अभी तक डेमोक्रेसी है, इधर तानाशाही नहीं है, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है। हिंदू मेजॉरिटी ने अभी तक बचा के रखा है इस देश को। और वक्फ बोर्ड एक इंडियन गवर्नमेंट का जो एक सेकुलर कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ऊपर एक धब्बा है। उस धब्बे को हटाने के लिए अभी पूरी तरह पावर नहीं है बीजेपी के पास, पर उसको अमेंडमेंट लेके उसका जो भी पावर है ना, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल पावर्स है, उस पावर को पूरी तरह रिटल डाउन करके उसको बिल्कुल बेयर मिनिमम कर देना चाहिए। और बेयर मिनिमम ही हो रहा है अभी, और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स होंगे इस एक्ट में, क्योंकि लोग जो हिंदू लोग हैं, ये जो मुसलमान लोग थे, इन्होंने अपना जो एक ओवर जेलस तरीके से करते रहते हैं ना, इनको लगता है कि बस हम ही कर सकते हैं एक चीज़, तो फिर अपने जो मसाजिद हैं और मस्जिद हैं इधर QR कोड लेके देंगे, और जो कंसल्टेशन करने के लिए एक ईमेल एड्रेस दिया था उधर ये मैसेज के ऊपर मैसेज ईमेल के ऊपर ईमेल भेज रहे थे, वो जो पोर्टल के ऊपर जो कॉमन लोगों का ओपिनियन मांगता है। तो फिर हिंदुओं को भी पता चल गया और हिंदुओं ने भी स्टार्ट कर दिया सारा जगह रोड्स में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे रोड्स में जो ऑटोज़ हैं, जो दूसरे चीज़ें, उधर जाके लोग करने लगे। तो फिर वक्फ बोर्ड जाते रहेगा, तो फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये तो बहुत रोचक कहानी होने जा रहा है। इस टाइम विंटर सेशन में पास हो जाना चाहिए, लेके आगे पूरी तरह पास कर देना चाहिए। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय माँ काली, जय गणेश, बप्पा मौर्य। टेक केयर।